जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Hello everyone. Okay, now hope all of you are ready with your textbook and pencil. Pencil you need because whenever you feel a difficult word or a new word, you need to mark that and find out the meaning of that word by yourself. And if you don't get the meaning, you can call me, you can ask me. Okay? Now, as you know, in this semester we have total 9 chapters. So today we will start with our first chapter, that is transport. Transport. You have been already studied about the transport from your first or second standard, I think. So you all are very well aware about the transport. So what is transport? What is the simple meaning of transport? अगर हम कहें कि transport, तो transport का simple meaning क्या होता है? Simply, transport means shifting of people or goods from one place to another is called transport. मतलब लोगों को या किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना, that is called transport. Now, in this chapter we will discuss mainly 3 topics, that is transport, means of transport, that is types of transport या उसके कौन से means होते हैं that, and the lastly the disadvantages of modern means of transport. As we know, in the earlier age we don't have any means of transport. Transport का कोई mean था ही नहीं. Whenever people need to go any place, they need to walk. उन्हें चलकर जाना होता था क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई मीन्स था ही नहीं. Slowly and slowly the means of transport were developed. Now we are having a lot of means of transport. तो ये जो lot of means of transport है ना, उसकी वजह से आज हमें हमारी जनरेशन को, लोगों को, ह्यूमन बींग्स को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, दैट वी विल स्टडी. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट we need to concentrate on our chapter, that is transport. चलिए, first of all, very fast we will gear up. See, here you have given some jumble words. आपको यहाँ पर कुछ jumble words दिए हैं, आपको उन्हें unscramble करना है और उससे एक word form करना है. That word will be any mean of transport. वो किसी भी transport का कोई mean हो सकता है. See, you have given one example. You have given bicycle and from that it becomes bicycle. So now you have given rest 5 that you have to do by yourself. वो आपको अपने आप करना है. When we will having the live class, at that time we will discuss. Okay? I hope you all will complete it very fast, huh? चलिए. Now let's start the chapter. Transport. Transport is not only needed for traveling to places but also for moving goods from one place to another. As I earlier told you, transport सिर्फ traveling means human beings के travel करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए use नहीं होता, but it is also used for the shifting of goods. जो भी हमारा सामान है उसे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज होता है. सी फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना है, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर लिविंग इन मोरबी एंड यू आर गोइंग टू शिफ्ट टू राजकोट, तो आप कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं. You can use many means of transport, but how you will carry your all goods
आपका घर का सारा फर्नीचर, सारा सामान, वो सब कैसे मूव करेंगे? वो आप हाथ में लेकर तो नहीं जा सकते हैं ना. सो फॉर दैट यू नीड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो दैट इज. तो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होता, ह्यूमन बींग्स का शिफ्टिंग नहीं होता, उसमें गुड्स का भी आता है. जो भी हमारा सामान है, फर्नीचर है, रॉ मटेरियल है या मशीनरी है, एवरीथिंग, उस सब की शिफ्टिंग को भी, उस सब को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. सी, raw materials needed to be transported to factories and the finished goods have to be reached to market. raw material मतलब वो चीज जिससे कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड द क्लोथ्स हमारे फाइनल गुड्स हैं, बट क्लोथ्स को बनाने के लिए हमें कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, दैट इज द रॉ मटेरियल. वो उसका रॉ मटेरियल है. तो सबसे पहले किसान, फार्मर के पास से वो कॉटन, वो जूट फैक्ट्रीज में पहुंचेगा, तभी तो वो कॉटन और जूट से फैब्रिक में कन्वर्ट होके वो आपके पास क्लोथ्स के रूप में आएगा. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाना पड़ता है, जहां पर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स में. फिर वो फाइनल प्रोडक्ट्स को मार्केट्स तक पहुंचाना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू परचेज दैट फ्रॉम मार्केट. अब हम डायरेक्ट फैक्ट्रीज में तो नहीं जाते ना. फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई ड्रेस परचेज करना है, तो क्या हम डायरेक्ट फैक्ट्री में जाएंगे कि भैया हमें ये ड्रेस परचेज करना है? नहीं ना, वी हैव टू गो टू द मार्केट. तो फार्मर्स से रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाना, एंड उस रॉ मटेरियल से जब फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो हमारे क्लोथ्स, फैब्रिक रेडी हो जाता है, तो उस फैब्रिक को मार्केट तक पहुंचाना. फॉर ऑल दीज थिंग्स वी नीड द ट्रांसपोर्ट. सी, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ क्लोथ्स के लिए, क्लोथ्स का तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, बट फॉर एवरीथिंग इट इज द सेम प्रोसेस. ओके. Thus, industrialization depends on an efficient transport system. So, जितना भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, बिकॉज कि हर इंडस्ट्रीज के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है. अगर आयरन इंडस्ट्रीज है, मशीनरीज है, तो उसके लिए आयरन चाहिए रॉ मटेरियल, और उसकी जो हैवी मशीन्स हैं, उन्हें ट्रांसफर करने के लिए, उन्हें शिफ्ट करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. तो हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वो सारा किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो अगर बेटर होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा होगा. नाउ there have been two major developments in the field of transport. See, from the starting, I told you ना कि starting में कोई भी transport के means नहीं थे. So at that time, if people want to go any other place, they need to walk. उन्हें चल के जाना पड़ता था. Even if they want to carry their things, उन्हें अपना सामान भी अपने साथ कैरी करके ले जाना पड़ता था. They don't have any means of transport. सो दो ऐसे मेजर इन्वेंशंस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जो तब से लेके अब तक हुए हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट को इतना ज्यादा डेवलप्ड, इतना ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है. दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हील. पहला है व्हील, यानी पहिया. एज यू नो, ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्क ऑन व्हील. अगर व्हील नहीं है तो कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीन वर्क नहीं करेगा. And second is the steam engine, that is invented by the James Watt, who has steam engine. First of all, we will discuss about the wheel. The first was the invention of wheel. जो पहला है वो wheel का invention है. In ancient time, carts with wheels were an important mode of transport. एंशियंट यानी पुराने टाइम में जो कार्ट्स होती है, जिसे यू हैव गिवन वन पिक्चर ऑफ बुलॉक कार्ट, आपको एक कार्ट की पिक्चर दी है. सो ऐसे कार्ट्स विद व्हील्स, ये ट्रांसपोर्ट के इंपॉर्टेंट वेज होते थे, क्योंकि उसके पहले तो ट्रांसपोर्ट होता ही नहीं था, लोगों को चल के जाना पड़ता था. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद लोगों ने सबसे पहले कार्ट्स बनाए.
पहले जो सबसे पुराने कार्ड्स होते थे, पीपल यूज टू पुल देम बाय देमसेल्फ, लोग उन्हें खुद खींचते थे। फिर धीरे धीरे हॉर्सेस से स्टार्ट किया, फिर बुलॉक से स्टार्ट किया, फिर ऑक्स से स्टार्ट किया। सो वैसे ऐसे धीरे धीरे दूसरे कार्ड्स भी बने। दे कंटिन्यूड to be in use for the time till the steam engine was invented by James Watt. Yes, the second most important invention was the steam engine, जो कि जेम्स वॉट ने बनाया था। सी यू हैव गिवन वन पिक्चर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, आपको स्टीम इंजन का एक पिक्चर भी दिया है। दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट के फील्ड में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, क्योंकि इस इन्वेंशन के बाद जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत फास्ट हो गई थी। सी, पहले क्या होता था, कार्ट्स होते थे व्हील से, तो कार्ट्स बहुत स्लो मूव करते हैं, तो दे टेक मच टाइम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो जो इंजन है वो बहुत फास्ट चलते थे कार्ट से, तो उसने ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड को इंक्रीज किया। ओके, दिस वाज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। In the engine designed by Watt, coal was used as the fuel to produce the steam. जो जेम्स वॉट ने जो इंजन बनाया था, स्टीम इंजन, स्टीम एज यू नो, स्टीम का मतलब क्या होता है, भाप, तो वो गर्म होने से, भाप बनने से चलता था। सो इसमें फ्यूल, ईंधन की तरह किसको यूज किया जाता था, कोयला। कोयले को स्टीम की फ्यूल की तरह यूज किया जाता था इन द फर्स्ट इंजन मेड बाय जेम्स वॉट। उसके बाद धीरे धीरे उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, उसके बाद डीजल से चलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे, सो बहुत सारे चेंजेस आए। ओके, लेटर इंजन्स दैट रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वर इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले स्टीम इंजन आया, उसके बाद डीजल और इलेक्ट्रिसिटी के। आज हमारे पास ऐसे इंजन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से मूव करते हैं। With this, transport underwent a complete revolution. ये जो था वो ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है, बिकॉज कि उसके पहले तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के मीन्स ही नहीं थे। सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन ऑफ व्हील was the most important invention in the field of transport. ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा इन्वेंशन था, बिकॉज कि व्हील एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कोई भी व्हीकल को मूव नहीं कर सकते। इफ यू विल सी एनी व्हीकल, आप बाइसिकल ले लीजिए, कार ले लीजिए, बस, जीप, ट्रेन, इवन एरोप्लेन, तो वो भी उनको भी मूव करने के लिए व्हील की जरूरत है। So they need the wheel. So wheel was considered as the most important invention in the field of transport. The second important invention was the invention of steam engine. स्टीम इंजन का था। सबसे पहले स्टीम इंजन बना जिसमें कॉयल को यूज किया जाता था एज फ्यूल। फिर धीरे धीरे डीजल को एज फ्यूल लेकर इंजन बनने लगे। फिर ऐसे इंजन इन्वेंट हुए, डेवलप हुए जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता था। आज बहुत सारी ऐसी कार्स हैं या ट्रेन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती हैं, सो दैट यूज द इंजन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ टुडे वी लिव इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट। आज हमारी कौन सी एज है? दैट इज द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट। आज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के फास्टेस्ट से भी फास्टेस्ट मीन्स हैं। इट इज पॉसिबल टू रीच एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड मच फास्टर देन बिफोर। आज हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके जरिए हम वर्ल्ड की किसी भी प्लेस में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं देन द अर्लियर, पुराने जमाने में। बिकॉज एंशियंट टाइम में तो कोई ट्रांसपोर्ट का मीन्स ही नहीं था, तो लोगों को चलकर जाना पड़ता था। दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो इन्वेंशंस such as aeroplanes and bullet trains, as you know bullet trains run very fast.
So aeroplanes and bullet trains have made the world a smaller place. तो जो एरोप्लेन्स है या बुलेट ट्रेन्स है जो कि बहुत फास्ट चलती है, तो इन्होंने वर्ल्ड को क्या बना दिया है, एक छोटा सा प्लेस। मतलब हम पूरे वर्ल्ड में बहुत कम समय में और बहुत आसानी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। दैट्स वाई इट इज सेड दैट द वर्ल्ड हैव बिकम अ स्मॉलर प्लेस, कि जो पूरा वर्ल्ड है एक छोटी सी जगह बन गई है जिसमें हम आसानी से मूव कर सकते हैं। अब जैसे हमारा घर है, हम हमारे घर में कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं ना, बट इफ वी आर लिविंग इन वन सोसाइटी, इन वन सिटी, वी कैन यूज द कार। हम कार, बस से आसानी से सिटी के अंदर मूव कर सकते हैं। बिटवीन टू सिटीज वी कैन यूज द ट्रेन ऑल्सो। सो all these means of transport, they converted the world in a smaller place. इसने पूरे वर्ल्ड को एक छोटी सी जगह बना दिया है जिसमें हम आसानी से मूव कर सकते हैं। Now let's discuss the means of transport. Now we have discussed about the transport, कि transport क्या है, उसकी important inventions क्या हैं। Now we will discuss the means of transport. See, the means of transport required in a particular country depend on its geographical limitations and on the needs of its industries. So जो means of transport हैं वो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसे ही means of transport होते हैं, और वो किस पर डिपेंड करते हैं, वहां की geographical limitations, मीन्स वहां की ज्योग्राफी कैसी है, एरियाज प्लेन है या वहां पे माउंटेन्स ज्यादा है। माउंटेनियस जैसे प्लेन एरियाज है वहां पे कार बस आसानी से मूव कर सकती हैं, बट जो माउंटेनियस एरिया है क्या वहां पर कार और बस आसानी से मूव कर सकती है? नहीं। सो उसकी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, उसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स पर वो डिपेंड करता है। एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज, कि वहां की जो इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल जो आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उनके लिए हैवी वेट व्हीकल चाहिए। ऐसे व्हीकल जिनसे आयरन बिकॉज हैवी होता है, तो हैवी वेट व्हीकल्स चाहिए जो हैवी वेट को आसानी से शिफ्ट कर सके। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो हमारा टोटल ट्रांसपोर्ट है हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इट्स लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 इट्स वाटर ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 इट्स एयर ट्रांसपोर्ट। ये जो 3 हैं ये हमारे 3 मेन कैटेगरीज हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, टाइप्स हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। Now first of all we will discuss the land transport. See, the land transport can be further divided into 2 types, 2 ways. उसे हम further दो parts में divide कर सकते हैं, that is roadways and railways. Because की जो rails होती हैं, trains होती है, they can't run on roadways. वो roadways पर नहीं चल सकती, उनके लिए स्पेशली रेलवे लाइन का होना जरूरी है। और जो हमारे लैंड व्हीकल्स होते हैं जैसे कार, बस जो हमारे होते हैं वो रेलवे लाइन पर नहीं चल सकते। सो लैंड ट्रांसपोर्ट हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज। ओके, दैट इज रोडवेज एंड रेलवेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रोडवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट, land transport or ground transport refers to the transport or movement of people or goods from one place to another on land, either by road or by rail. Land transport क्या होता है? मतलब जमीन के ऊपर, जब जमीन के ऊपर प्रोडक्ट्स को, गुड्स को या ह्यूमन बींग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट, इधर बाय रोड और बाय ट्रेन। लैंड ट्रांसपोर्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज। हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रोडवेज एंड रेलवेज। नाउ रोडवेज, roadways are needed for the fast movement of vehicle. अब फॉर एग्जाम्पल कि
जो हमारी लैंड है वो हर जगह से तो कॉमन होती नहीं, कहीं पर वो एकदम प्लेन स्मूथ है, कहीं पर वो रफ है, अंडरलेटेड है। तो क्या होता है, जो रफ और अंडरलेटेड एरिया है, क्या वहां पर हम हमारे व्हीकल्स को आसानी से मूव कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फास्टेस्ट मूवमेंट के लिए हमें प्रॉपर रोडवेज की जरूरत होती है। सो फॉर दैट वी नीड द रोड्स. Roads are needed for fast movement of vehicles. Today, every country has a network of metalled and unmetalled. Metalled that means पक्का रोड, unmetalled that means कच्चा रोड. कच्चा रोड तो आमतौर पर होते ही हैं, जो विलेज एरियाज होते हैं वहां पर ज्यादातर अनमेटल्ड यानी कि कच्चा रोड्स होते हैं, और जो अर्बनाइजेशन है, अर्बन सेंटर्स हैं, वहां सिटीज हैं, वहां पर ज्यादातर मेटल्ड यानी कि पक्का रोड्स होते हैं, which facilitates the movement of traffic. See, जो मोस्टली अर्बन सिटीज होती हैं वहां पर हमारे पास पक्का रोड्स होते हैं, या तो वो सीमेंटेड होते हैं या तो फिर वो जो चारकोल होता है उससे बने होते हैं, बट दे आर, so these are the metalled roads. Okay, developed countries have a network of highways. You are very well aware about the highways. Highways वो roadways होते हैं जो बहुत straight होते हैं, मीन्स की सिटीज के बीच में कहीं से नहीं जाते, जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होते हैं और वहां पर हैवी व्हीकल या फास्ट व्हीकल्स मूव कर सकते हैं इजीली. So developed countries have a network of highways. These are broad and straight roads and are known as freeways और expressways. ये जो हमारे हाईवेज होते हैं उन्हें हम फ्रीवेज भी कह सकते हैं और एक्सप्रेसवेज भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर मोस्टली स्ट्रेट एंड ब्रॉड. ये बहुत ज्यादा ब्रॉड, चौड़े होते हैं और एकदम स्ट्रेट होते हैं, इनमें ज्यादा घुमाव फिराव नहीं होता. जैसे हमारे सिटी के बीच में जो रोड्स होते हैं वो कभी यहाँ टर्न हुए कभी वहां टर्न हुए, लाइक दैट. जो हमारे हाईवेज होते हैं वो टर्न नहीं होते, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट ही होते हैं. दैट्स वाई दीज आर नोन एज हाईवेज, फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज. ओके, सो जो हमारे ये हाईवेज या फ्रीवेज या एक्सप्रेसवेज होते हैं इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. One part is for the moving of vehicle on one side and second part for the moving of vehicle on the other side. Means एक part जाने के लिए और दूसरा part आने के लिए. Okay? See, each road is divided into 2 parts. One part is for the traffic moving in one direction and the other for traffic moving in the opposite direction. Some of these highways are wide enough to allow 4 to 6 lanes of traffic. कुछ हाईवेज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, जहां पे 4 से 6 लेन्स होती है, मतलब 4 ways to move in one direction, 4 ways to move in other direction. तो वहां पर जो लेन्स होती है, जाने की जगह होती है, एक साथ 4 या 6 व्हीकल्स मूव कर सकते हैं एट द सेम टाइम. The highways have a fixed speed limit. जो हाईवेज की स्पीड लिमिट होती है वो फिक्स होती है, बिकॉज कि ये फ्रीवेज होते हैं और स्ट्रेट रोड होते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी से कितना भी हाई स्पीड में चला सकते हैं. सो वहां पर एक स्पीड लिमिट फिक्स होती है, दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट. There are some countries that are connected to other countries by roadways. ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो रोड्स के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं. सी, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज कनेक्टेड विद पाकिस्तान, विद नेपाल, विद चाइना, विद भूटान, विद बांग्लादेश, विद म्यांमार. सो विद ऑल दीज आर नेबर कंट्रीज, इंडिया इज कनेक्टेड विद रोडवेज. तो इन सारी कंट्रीज से इंडिया रोडवेज से कनेक्टेड है. सो ऐसी बहुत सी कंट्रीज होती हैं जो आपस में रोडवेज से कनेक्टेड होती हैं. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय अ नेटवर्क ऑफ रोड्स. जो यूरोप है मींस नेक्स्ट टू एशिया, अफ्रीका के ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट. I hope you all are very well aware about the continents. So यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसके लगभग सारी कंट्रीज आपस में रोडवेज से कनेक्टेड है.
India is also connected to her neighbors such as Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh by a network of routes. That I told you. See, you have given one example. The Siliguri corridor in West Bengal connects India with neighboring countries of Nepal and Bangladesh. See, it's the name of a road, that is Siliguri corridor. It is the road in West Bengal and it connects the India with Nepal and Bangladesh. Both of these are national neighbor countries. ये हमारी neighbor countries हैं. तो ये जो एक स्ट्रेट हाईवे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये नेपाल और बांग्लादेश से इंडिया को कनेक्ट करता है. ओके, नाउ India, being a vast country, has made many roads and highways, but all its territories do not have equally developed roads and highways. Okay, before that, do you know the India? Okay, sorry, that is about railways, not the roadways. Okay, that we will discuss in railways. Okay, see. Till now we studied about the benefits of roads. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? roads के benefits. Now we will discuss the disadvantages of roadways in India. Means हमारे जो roadways की जो condition है that is not good in India. About that we will study. Okay. See. बीइंग अ वास्ट कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, हमारे जो रोड्स हैं और जो हाईवेज हैं, इसकी जो टेरिटरीज मतलब जो बाउंड्रीज होती है वो ज़्यादातर डेवलप्ड नहीं है. बहुत सारे तो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर इवन मेटल रोड्स भी नहीं हैं, अनमेटल्स कच्चा रोड्स हैं. वी स्टिल हैव मैनी कच्चा रोड्स एंड नीड टू बी मेटल्ड एंड सीमेंटेड. बहुत सारे रोड्स जो हैं वो अभी भी कच्चा रोड्स है, जो सिटीज को या विलेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं. दीज आर कच्चा रोड्स. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया. रोड ट्रांसपोर्ट हैज टू मेजर ड्रॉबैक्स. नाउ दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. अभी तक हमने पढ़ा था कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं. हम आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं, गुड्स को मूव कर सकते हैं, सिटी कंट्रीज को ज्वाइन करता है. सो ये सब उसके इंपॉर्टेंस थे, benefits थे. After that we discuss the barriers of these roads in India. Now we will discuss the drawbacks of road transport. कि जो road transport है उसके क्या disadvantages है, drawbacks है. See, firstly, sometimes it is not possible to construct roads on difficult terrains such as hilly areas. Terrains मतलब means की जगह. बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर जो स्ट्रेट रोड है वो बनाना डिफिकल्ट होता है, जैसे कि हिली एरियाज में. मैंने आपको पहले भी बताया था कि माउंटेनियस एरिया है तो वहां पर हम रोड डेवलप नहीं कर सकते. सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. सेकेंडली, दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कांट बी यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस. ये जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन इंडिया. ओके, नाउ वी नीड टू गो टू रशिया. हमें इंडिया से रशिया जाना है. सो दैट इज वेरी लेंथी रूट, बहुत लंबा रूट हो जाता है. इन दैट प्रोसेस इफ वी यूज द रोडवेज, अगर हम रोडवेज यूज करते हैं तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा. तो लॉन्ग डिस्टेंस. सो जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है तब हम रोडवेज को ज्यादातर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. वो हमारा टाइम और मनी कंज्यूमिंग हो जाता है. ओके, सो these two are the drawbacks, limitations of the road transportation. Now next we will discuss about the railways. See, railways, on the right hand side of your textbook you have given the map of the railway network of India. इंडिया के जो रेलवे नेटवर्क है उसका आपको मैप दिया है. यू नो, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया. एज यू नो, वी लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट. तो पूरे एशिया में जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है ना, दैट इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क. एंड इन द वर्ल्ड,
लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इज ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है. बट इन एशिया इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज. नाउ लेट्स स्टार्ट द रेलवेज. Railways are one of the most popular means of transport in India. Railways क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन है, बिकॉज कि वो रोडवेज से वेरी फास्ट मूविंग होता है. जितना टाइम हमें रोडवेज से लगता है उससे कम टाइम हमें रेलवेज से लगता है, बिकॉज जो रेल्स होती है वो रेल लाइंस पर ही मूव करती हैं और रेलवे लाइंस बहुत फास्टली वर्क करती है. सो जो रेल की मूवमेंट होती है वो कार, बस या रोड व्हीकल की मूवमेंट से फास्ट होती है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता. जो रोडवेज होता है वहां पर तो हमें ट्रैफिक को भी फेस करना पड़ता है, बट जो रेलवेज होता है वहां पर ट्रैफिक नहीं होता है. ओके, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. ये इसे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. Trains are used for carrying bulky goods over long distances. जैसे रॉ मटेरियल है, अब ऐसा तो नहीं है कि फैब्रिक इंडस्ट्रीज अगर एक जगह पर है तो उसका रॉ मटेरियल वही मिल जाएगा, अगर आयरन इंडस्ट्रीज है तो उसके बाजू में ही उसका रॉ मटेरियल मिल जाएगा. काफी दूर से, इवन कभी कभी तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से इन्हें मूव करना पड़ता है. उस केस में रोड ट्रांसपोर्ट की बजाय जो रेल ट्रांसपोर्ट होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. ओके, दे आर ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस. जो ट्रेन्स होती है वो रोड व्हीकल्स के एवज में जो होती है ज्यादा कन्वीनियंट होती है, ज्यादा इजी होती है, बिकॉज दे मूव वेरी फास्टर देन द रोड व्हीकल्स. Sorry. Okay, goods trains carry raw materials to factories and industries. जो trains होती हैं, जो goods trains होती है, जो specially for goods and materials, जो जिसे आप मालगाड़ी भी कह सकते हैं. goods trains, that means मालगाड़ी, जो specially for goods को one place से दूसरे place तक carry करने के लिए use की जाती है. They carry the raw material to factories and industries. Then they also carry finished products to different parts of the country and to the ports of export. जो हमारा raw material है उसे पहले factories तक पहुंचाती है, फिर जो finished product है उसे country के बहुत सारे different areas में and even उन्हें export करने के लिए ports तक पहुंचाने का काम भी ट्रेन से किया जाता है. Railway plays an important role in the growth and development of industries in every part of the world, because की जो रेलवे लाइंस होती हैं they work in higher speed और वो हैवी वेट सामान को भी आसानी से उठा सकती है. सो ऐसे तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा एरोप्लेन्स होता है, बट वो इतना ज्यादा हैवी वेट एक साथ कैरी नहीं कर सकते जितना कि एक ट्रेन से कैरी किया जा सकता है. सो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है एंड दे कैन कैरी हैवी गुड्स एट द सेम टाइम. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेन्स होती है या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेन है दैट वाज वेरी वेरी गुड. उसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, द यूएसए हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन द वर्ल्ड. आई टोल्ड यू ना कि वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वो यूएसए में है, बट द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे ऑफ एशिया इज इन इंडिया. इंडिया जो है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया. See, in some countries, railway connects cities on the eastern coast to those on the western coast. Such long distance railway lines are called transcontinental railways. That is very important content. See, कुछ countries ऐसी होती है जिसमें जो उनकी रेलवे लाइंस है उनके ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से कनेक्ट करती है. सी फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज
Arunachal Pradesh, and the westernmost part of India is Gujarat. So जो railway lines, countries, see, in some countries connects on the eastern coast to the western coast. So the railway line that connects these two parts is called transcontinental railways. तो उन्हें transcontinental railways कहा जाता है. Okay? Countries like USA, Canada and Australia have such large railway networks. तो ये जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज है ये कौन कौन सी कंट्रीज में है? यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है. ये कुछ कंट्रीज है जहां पर ऐसा ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज रेलवेज वर्क करता है. नाउ चाइना, फ्रांस एंड जापान, ये these countries have some of the fastest trains in the world. चाइना है, जापान है, फ्रांस है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन्स हैं. दे रन एट अ स्पीड ऑफ ओवर, मतलब ज्यादा, 430 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में 430 किलोमीटर से भी ज्यादा इनकी स्पीड है. An underwater railway tunnel links France with UK, United Kingdom. Underwater railway tunnel, that means कि पानी के अंदर से भी एक टनल बनाकर रेलवे लाइन पास होती है जो कि फ्रांस और यूके को ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है. सो ओके, नाउ on the right hand side you have given one info pebble, that is Tangular railway station in Tibet is the highest railway station in the world. Yes, ये almost 3500 meter above है from the sea level. Sea level से लगभग 3500 meter above है Tangular railway station जो कि तिब्बत में है. ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचा रेलवे स्टेशन है. ओके, you have given one more info pebble on the next page, that is the train route that connects St. Petersburg and Vladivostok is called Trans-Siberian Railway, that is in Russia. रशिया के नॉर्थन पार्ट में जो व्लादिवोस्टॉक है वहां, व्लादिवोस्टॉक है, वहां से रशिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट तक जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां से लेके एक रेलवे लाइन है दैट इज नोन एज ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जैसे कि हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं. इट इज ए 10,000 किलोमीटर जर्नी एंड इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड. ये पूरी सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टॉक तक की जो जर्नी है वो 10,000 किलोमीटर्स की है और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, सबसे लंबी, बिकॉज इट कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर. So that is very good info, and you know that all info pebbles are very important. Okay, now, and underground railway system is called metro rail. You all are very well aware about the metro rail. Metro rail क्या होती है? अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होता है जिसमें जो रेल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे चलती हैं. लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता, etc. These all are the places they served by the metro system, जहां पे मेट्रो सिस्टम्स को यूज किया जाता है. Now, today India has the largest railway network in Asia and the fourth largest in the world. See, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है that is the largest one in Asia, and India has the place of fourth largest railway station in the world. Shatabdi, Rajdhani are some of the super fast trains in India. You are very well aware
about the fastest trains of India. जैसे शताब्दी है, राजधानी है, ये जो हमारी कुछ fastest trains हैं. The network of metro rail system is also developing at a fast pace. अभी तक जो हमारा मेट्रो ट्रेन है वो दिल्ली और कोलकाता में ही ज़्यादातर डेवलप है, बट धीरे धीरे हमारे जो जितने भी सिटीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी ये सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जा रहा है. तो धीरे धीरे इंडिया में जो मेट्रो रेल सिस्टम है उसे और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है. ओके, नाउ till now we have discussed about the transport, the means of transport. In that we have discussed land transport, that is roadways and railways. Now